أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں داستان سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 8۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اندر اندھیرا تھا۔ 2-3 زخمی آہستہ آہستہ کر آ رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا۔ اس نے نحیف آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لڑکی منہ سے شش کی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا، رابن کہاں ہے؟ اسے جواب ملا، ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی، کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، موبی۔ رابن اٹھ بیٹھا، ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا۔ اسے اپنے پاس لٹا کر اور کمبل اوپر ڈال دیا۔ بولا، سنتری نہ آ جائے، میرے ساتھ لگی رہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائی یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ اور چہرے مہرے اور جسم جشے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ اعلیٰ رتبے کا لگتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا، یہ کوئی معمولی سپاہی معلوم نہیں ہوتا، اس پر نظر رکھنا۔ علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرتا رہا۔ تم کتنے زخمی ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا، کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، رابن نے جواب دیا، خراش تک نہیں آئی۔ انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چوٹیں ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں، لیکن ہر طرف مسلمان فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آ گیا۔ اب فرار کی کوشش کروں گا، جو بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے ذرا غصے سے کہا، مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم 7 کی 7 لڑکیاں مسلمان کی قید میں کیوں آ گئی؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ وہ زندہ ہیں، رابن، موبی نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ رابن نے پوچھا۔ کرسٹوفر کہاں تھا؟ اسی نے چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر پھٹا گیا۔ رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا، وہ کرسٹوفر جس کے تیر کی اندازی نے شاہ آگسٹس کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں لی تھی، یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چونک گیا کہ 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بچ گیا؟ بدبخت کے ہاتھ درد سے کام گئے ہوں گے۔ فاصلہ زیادہ تھا، موبی نے کہا، اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر چڑھا گیا۔ اس حالت میں اس کا تیر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا، موبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی ساحل پر گیا تھا تو اس کے ساتھ 3 کمانڈر تھے اور 4 محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا،
کرسٹوفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اونٹ اوپر بٹھا دیا۔ سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم فصلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتی۔ کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے۔ ہم 7 لڑکیوں نے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا۔ موبی نے رابن کو ساری باتیں سنائیں جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ 7 لڑکیاں اور 5 آدمی جو مراکشی تاجروں کے بیس میں تھے حملے سے 2 روز پہلے ساحل پر اتر گئے تھے۔ 5 آدمی صلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈر تھے۔ وہ لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں۔ وہ خوبصورت تو تھیں، انہیں جاسوسی اور ذہن کی ترکیب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ 5 مردوں کا یہ مشن تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ کر دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں۔ وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا، مگر تیر خطا گیا۔ وہ سالاروں اور محافظوں کے نرغے میں رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ وہ 5 کہاں ہیں؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہیں، موبی نے جواب دیا۔ وہ ابھی یہیں رہیں گی۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میری ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا ہے، لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فرائض کو دیکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ سلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی سلیب ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور سلیب ہاتھ میں لے لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس سلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے سو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں، دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں، بار بار صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں، بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہو جانے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟
मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। राबिन ने कहा, मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी को सूडानियों के 50,000 मुहाफ़िज़ लश्कर पर भरोसा नहीं। हालांकि ये मुसलमानों के वसराए मिस्र की अपनी फ़ौज है। अयूबी ने आकर मिस्री फ़ौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने इसका ख़त लिखा था और मैंने तस्दीक की थी कि यह ख़त नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं, मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये कैसे हुआ, किसने कहा। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्टस ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके इनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मुबी, शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सज़ाए मौत से कम क्या सज़ा देगा। सलेब का कहर मुझ पर अलग नाजिल हो गया। मैं सब जानती हूँ, मोबी ने कहा। जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ मैं क्या करूं। राबिन के एहसास पर इतना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि इसे यह भी एहसास नहीं था कि मोबी जैसी दिलकश लड़की जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था इसके सीने से लगी हुई है और इसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल इसके आधे चेहरे को ढांप रही हैं। राबिन ने इन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मोबी, तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के गिर्द लिपट गईं तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और इसके साथियों से कहो कि वो ताजरों के भेस में ही नाजी के पास पहुंचें और मालूम करें कि इसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राज फाश किस तरह हुआ कि इससे फ़ायदा उठाकर सलाहुद्दीन अयूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घाट में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया। और इन्हें ये भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अयूबी से ही तो नहीं मिल गया और इसने हमारा यही हशर कराने के लिए ही तो ख़त नहीं लिखा था। अगर ऐसा ही हुआ तो हमें अपने जंगी मंसूबे में रद्दो बदल करना होगा। मुझे यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, इन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। ज़रूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों और अस्करी क़ियादत का जज्बा ख़त्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी हैं। तुमने बात फिर लंबी कर दी, मोबी ने इसे टोकते हुए कहा। हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए कि बड़े मज़े से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे। हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद हैं। बाहर संतरी फिर रहे हैं और रात गुजरती जा रही है। हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं। हमारा मिशन तबाह हो चुका है। अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए। हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं। हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाएं और इसके धोखे की छानबीन करें, फिर किसे इत्तला दें। तुम कहाँ मिलोगे? मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा, राबिन ने कहा। लेकिन फरार से पहले इस कैंप की इसकी नफरी और अयूबी के आइंदा अज़ाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूँगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलेब के लिए ख़तरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है। शाह बेमलर कहता था कि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बैठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की ज़रूरत है।
मगर इसका ये अज़म महज खुश फहमी साबित हुआ। मुझे यहाँ रहकर अय्यूबी की कमज़ोर रगें देखनी हैं और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है। निहायत ज़रूरी ये है कि अय्यूबी ज़िंदा न रहे। अगर वो ज़िंदा रहे तो हमारे उस कैद खाने में ज़िंदा रहे जहाँ वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का एक तारा भी इसे नजर न आए। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को इनका काम समझा दो। उन्हें ख़ास तौर पर जहन नशीन करो कि इस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आँखों और इतने दिलकश जिस्मों से इसे बेकार करना है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के काम का ना रहे। और अगर हो सके तो इसके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तुम अच्छी तरह जानती हो 2 मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हदायत देकर क्रिस्टोफर के पास पहुंचो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अय्यूबी पर आकर ही खता होना था। अब इस गुनाह का कुफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। राबिन ने मोबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी, लेकिन खुदाई यसू मसीह की नज़रों में तुम मरियम की तरह कंवारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मोबी राबिन के बिस्तर से निकली और खेमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका, अंधेरे में इसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओट से देखा संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता है। मोबी चल पड़ी। दरख्तों से गुजरती, कदम कदम पर पीछे देखती, वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय किया होगा कि इसे 2 आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें इसके खेमे के करीब मालूम होती थीं। इसे ये ख़तरा नज़र आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला लाया। उसने सोचा कि खेमे में जाने की बजाय अपने उन 5 साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजरों के भेस में कोई 1.5 मील दूर ख़ैमाज़न थे। मगर इसे ये ख्याल भी आया कि इसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थीं तो पूरी चालाक, फिर भी इन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी ना था। मोबी ज़रा और आगे चली गई ताकि इन 2 आदमियों की बातें सुन सके। इनकी ज़ुबान वो समझती थी। ये तो इसने धोखा दिया था कि वो सुसली ज़ुबान के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मोबी दबे पांव आगे बढ़ी। इसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। इसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान इसे एक स्याह साया जो कि किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मोबी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था। फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फिजा रात को आईने की तरह शफाफ हो जाती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टिंड मुंड दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मोबी ने पहलू इस आदमी की तरफ कर दिया। इसके बाल खुले हुए थे जिन्हें इसने हाथ से पीछे किया। इसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लिबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। यह आदमी रात के संतरियों का कमानदार था। वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था।
संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमांदार इसलिए ज़्यादा चौकस था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमांदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। इसी शाम कमांदारों को खबर किया गया था कि सलेबियों ने जासूसी और तखरीब कारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खाना बदोश के बहरूप में भी हो सकती हैं और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी मौजूद हो सकती हैं जो फौजी कैंपों में खाना मांगने के लिए आती हैं। ये लड़कियां अपने आप को बेघर और मजलूम ज़ाहिर करके पनाह भी मांग सकती हैं। कमांदारों को बताया गया था कि आज रात 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बज़ाहिर रहम करके मगर इन्हें मुश्तिबा समझकर पनाह में लिया गया है। इस कमांदार ने यह अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे, और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था, इसे टीले पर एक लड़की का हुलिया नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नई संतरियों को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके इसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पहली रोशनी में इसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा कि 7वां बिस्तर खाली है और इस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे इनके नीचे लड़की सोई हुई हो। इसे मालूम नहीं था कि 7वीं लड़की टीले पर इसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि इसे आवाज़ दे या इस तक खुद जाए, या अगर वो जिन या चुड़ैल है तो इसके गायब होने का इंतज़ार करे। थोड़ी सी देर के इंतज़ार के बाद लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमांदार, जिसका नाम फ़खर अल मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फ़खर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन चुड़ैल नहीं। वो तनोमंद मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा था। रात की खामोशी में इसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत कम था, लेकिन फ़खर मर्द था, फौजी था, चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियाँ और कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़ कर फ़खर अल मिस्री ने महसूस किया कि इसके आगे तो कोई भी नहीं है। उसने रुक कर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत सा बाएं लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी। जहाँ उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहाँ उसे फ़ौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी। उसे खंजरजनी और दावपेच भी सिखाए गए थे। वह एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फ़खर आगे गया तो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताक़ुब आंख मचोली की मानिंद था। फ़खर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। इसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज़ और इतना ज़्यादा ना भाग सकती। ताक़ुब में फ़खर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची ज़मीन से बहुत फ़ायदा उठाया। इसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहाँ तक जा पहुँची। उसने अपने आदमियों की आवाज़ें दी। वो घबरा कर जागे और खेमे से बाहर आए। एक ने मशल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लिपटे हुए कपड़े थे।
इनकी आँख की रोशनी बहुत ज़्यादा थी। फ़खर ने तलवार सूंट ली और हांफता कांपता इनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजिर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की इनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाश्ते शोले में इसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। इसका सीना उभर और बैठ रहा था। इसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फ़खर अल-मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने इसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफज़दा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये लोग ईसाइयों से ज़्यादा वहशी हैं। इनका सुल्तान इंसान नहीं, सांड है, दरिंदा है। इसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी हैं। मैं इससे भाग कर आई हूँ। कौन सुल्तान? फ़खर ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाहुद्दीन अयूबी कहते हो, मोबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की अरबी बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फ़खर ने कहा और पूछा, ये है कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है, एक आदमी ने फ़खर से कहा। तलवार न्याम में डाल लो, हम ताजुर हैं, हमसे आपको क्या ख़तरा? आओ, इस लड़के की बात सुन लो। उसने आह भर कर कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हश्र कर रहा होगा। इनका ये हश्र दूसरे सारालों ने किया है, मोबी ने कहा। शाम को इन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और इन्हें बेसुंध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी हैं। फ़खर अल-मिस्री तलवार न्याम में डालकर इनके साथ खेमे में चला गया। अंदर जाकर बैठा तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और इसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फ़खर से पूछा कि इसका रुतबा क्या है। इसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। इन्होंने इसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे इन्होंने अंदाज़ा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और ज़िम्मेदार फ़र्द है, ज़हीन और दिलेर भी है। इन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फ़खर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो इन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी।